Yeah, now, yeah, just sharing with you the same file, PDF file. That is a, uh, I think it's visible. Yes, sir. It is visible, sir. Okay, okay. So just telling you ki, what we have taken today. We have taken negative capability, egotistical sublime, willing suspension of belief. We will discuss these 3 points. After it, we will cover some more points. So when I talk about negative capability first, remember that it's a phrase coined by whom? Coined by John Keats. Number 1 point. And to describe what? To describe his conception of the receptivity, जो उनका एक कंसेप्शन है किसको लेकर के, रिसेप्टिविटी को लेकर के, कि हाउ अ मैन, हाउ अ वुमन रिसीव द थिंग, या व्हाट इज द ओपिनियन, या व्हाट इज द कंसेप्शन ऑफ जॉन कीट्स about receptivity. And this receptivity is important for what? Necessary to the process of poetic creativity. It means that this phrase was coined by John Keats. Number 1 point, the phrase was coined by John Keats. Number 2 point, ki this phrase is related to what? This phrase is related to just conception of receptivity. Number 2 point. Number third point, we can just see poetic creativity. What we can see? Poetic creativity, which draws on S.T. Coleridge's formulation of negative belief, and it is also related, it is drawn on what? Coleridge का जो concept है negative belief or willing suspension of disbelief. What happened that John Keats wrote a letter to Benjamin Bailey को, कब उन्होंने लिखा? 22 नवंबर 1817 को, और he writes, is if I sparrow before my window come, if I sparrow before my window, yeah, if I see any sparrow before my window, I take part in its existence. This line is very important. I take part. It means that I accept the existence of that sparrow, and accepting the existence of that sparrow means I give value to that sparrow. In my view, that sparrow has some importance. Number one. Number two, you will come to know after it, he wrote another letter after 1 month, by December 1817, to his brother George and Thomas, and said that negative capability means what? Man is capable of, for what? In uncertainties. Man is capable to reach, to go, or to make his entries into uncertainties, mysteries, doubts, without any irritable reaching after fact and reason. After fact and reason. Keats regarded Shakespeare as the prime example of negative capability because attributing to him the ability to identify completely with his characters and to write about them with empathy and understanding. Empathy and understanding. So you will come to know, if the question comes ki John Keats found the concept of negative capability in which writers, you will come to know he find this attribute in the works of William Shakespeare and appreciates William Shakespeare for what? And appreciates William Shakespeare for using what? For using these things. That is what? That is the, you can say, in his character, just you will come to know the ability to identify completely with his characters and to write about them with empathy and understanding. And this means that कि कीट्स ने एक कहा कि
शेक्सपियर अपने हर कैरेक्टर में, चाहे वह कैरेक्टर बुरा क्यों ना रहा हो, लेकिन उनमें भी उन्होंने ऐसा लिखा कि उसमें एक इम्पैथी अराउज किया। किड्स जो है अपने कैरेक्टर के साथ इतना जुड़ जाते थे कि वो सिंपैथी नहीं दिखाते थे, बल्कि उसके साथ अ गुड अंडरस्टैंडिंग, एंड यू फाइंड द concept of empathy. Here I would like to tell you, when it is said that what is negative capability, in negative capability you will come to know कि man is capable to reach in that world which is known as the world of uncertainty. Number one point, the world which is known, the world of mysteries, the world which is known, the world of doubts, the world which is known, such a type of world that is unbelievable. But without using fact, without using reason, man is capable to go there or to believe in that world. This particular process is known, how this particular process is known, the process of negative capability, and this process plays a very significant role in poetic creativity. So negative capability, a phrase propounded by John Keats, number one point, and you will come to know that this phrase describes Keats' conception of the receptivity. How do we receive the thing? How do we take the thing? And especially when we receive the thing or take the thing, and how that receiving, that taking up that thing is significant for the poetic creativity. And you will come to know that this formula is based on Shakespeare. You will come to know this formula is based on H.T. Coleridge's negative belief or willing suspension of disbelief. And he has written a letter to Benjamin Bailey on 22nd November 1817 and just said, "If a sparrow before my window, I take part in its evidence." And again, he wrote another letter on 22nd December 1817, in which he wrote that to his brother George and Thomas, and just said negative capability is a phrase which shows that man is capable. Man is capable forward. Yeah, man becomes capable. Yeah, when man is capable. Yeah, when man becomes capable to make his entry. Yeah, to make. Yeah, to believe in uncertainties, mysteries, doubts, और कब कैसे, without any irritable reaching after fact and reason. For this, Keats gave the example of Shakespeare, कि how Shakespeare created his character, and especially he used this particular process of creativity, that was the negative capability, attributing to him the ability to identify completely with his characters and to write about them with empathy and understanding. इम्पैथी का मतलब क्या? जैसे कीट्स ने कहा, अगर मेरे विंडो के बगल में कोई स्पैरो आती है तो मैं उसमें इतना डूब जाता हूँ कि मैं उसके अस्तित्व को स्वीकार करता हूँ। यह कब संभव है? जब आपके अंदर उस ऑब्जेक्ट के प्रति इम्पैथी होगा, जब आपके अंदर उसके प्रति सहानुभूति होगी, तभी जाकर के आप उसमें डूबेंगे, तभी उसमें आप क्रिएटिविटी देखेंगे। यही बात उन्होंने कहा है कि शेक्सपियर ने अपने कैरेक्टर्स में इम्पैथी दिखाई और उसमें अंडरस्टैंडिंग दिखाई। शेक्सपियर उस कैरेक्टर में जब डूब जाते हैं, तभी जाकर के उस कैरेक्टर का एग्जिस्टेंस हो पाता है और उस कैरेक्टर की ब्यूटी निकल करके आती है। सो जस्ट आई वांट टू नो कि डिड यू कम टू नो व्हाट आई वांट टू से, या व्हाट आई टोल्ड यू? डिड यू कम टू नो? किसी को कोई प्रॉब्लम इससे? रामा, अमित जी, ओम प्रकाश भाई? Yes, sir, got it. ओके, ओके। रमा, आपको? Yes, sir. Yes, sir. Sir, या negative belief is another term of negative capability, sir, by S.T. Coleridge. Negative belief. Yeah, negative belief, not another term for negative capability, but it's a term that is related to willing suspension of disbelief. College has presented the same thing in another way. And what is Oh, willing suspension of disbelief? Willing suspension of disbelief, I will explain it in the next passage.
You will come to know ki to create a situation in which the thing which is unbelievable, you have to present that thing in such a way ki people are going to believe it. But when I talk about negative capabilities, this negative capability means that the man should just kill his you can say his irritation or his negativity. Yeah, irritable reaching. And what is irritable reaching? Ki man should not be irritated. Yeah, man should not be irritated. Yeah, think that he is only capable, other things are not capable. When you kill your ego, when you kill your belief that you are Yes. something and others are nothing at all, it means that that is you are going to negate. Negate means you are going to deny. What you are going to negate and deny? Capability. And whose Yes. capability? Your own capability. And going to accept the capability of others. जब Yes. आपके अंदर का ईगो मरेगा, जब आपके अंदर का जो एक तरह से निगेटिव कैपेबिलिटी है कि हम ही अकेले जो है सब कुछ है, दूसरा कुछ नहीं है, जब इस तरह का कैपेबिलिटी जो आप में है, जब ये मरेगी और आप दूसरे को इम्पोर्टेंस देंगे, तब आप उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाएंगे, इतना रच जाएंगे, बस जाएंगे कि आप वो खुद वो जिंदगी जीने लगेंगे, तभी क्रिएटिविटी जा करके आएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मैकबेथ की कैरेक्टर लेडी मैकबेथ इसलिए इतना खूबसूरत ढंग से आ पाती है कि शेक्सपियर लेडी मैकबेथ में डूब गए। चाहे लेडी मैकबेथ का मास्कुलिनिटी दिखाना हो, चाहे लेडी मैकबेथ का एम्बिशन दिखाना हो, चाहे लेडी मैकबेथ का हस्बैंड को हेल्प करना हो, चाहे जो है उसका अपना कोटेशन की ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, ओ हो हर ओन मैडनेस का रहा हो, हर ओन मतलब आप कह सकते हैं कि रिपेंट रहा हो। सो उसमें आपको डूबना पड़ेगा, उस किरदार में डूबना पड़ेगा। जब तक आप उस किरदार में नहीं डूबेंगे, तब तक इसका मतलब आप में क्रिएटिविटी नहीं है, आप अपने आप को डिटैचमेंट लिए हुए हैं। जस्ट आई वांट टू नो व्हाट इज डिटैचमेंट। Sir, detachment means, mm, sir, अपने आप को mm, अलग करके देखना, एक दूरी बना करके देखना, दैट इज डिटैचमेंट। अपने आप को एलिनिएट करना। तो yes, या उनका ये कहना है, आप कह सकते हैं कि जानकीर्स का, कि इफ यू आर क्रिएटिंग समथिंग या इफ यू आर क्रिएटिंग एनीथिंग और राइटिंग समथिंग, देन देयर शुड बी नो डिटैचमेंट। कोई डिटैचमेंट नहीं होना चाहिए। यू हैव टू सिंक इन दैट कैरेक्टर, देन द then the attribute of that character will come, then the creativity will come। जब come. तक आप Oh, अपने अपने अंदर का ईगो नहीं मारेंगे, तब तक आप दूसरे को इम्पैथी दूसरे के प्रति आप में नहीं आएगी। और जब तक वो इम्पैथी नहीं आएगी, तब तक आप वो किरदार नहीं निभा पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मुगले आजम का जितना भी वहां पे कैरेक्टर्स है, वो वो समझिए कि उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की थी उस तरह का पूरा कल्चर, उस तरह का पूरा आप कह सकते हैं कि लाइफ स्टाइल जीने का, जो हम उनमें देखते हैं कि दे लिव्ड दैट लाइफ। दिस इज व्हाई such beautiful characters we found। I think okay, you sir. got it। Yes, sir. Thank you, sir. Okay, okay. Now we find another term, that is egotistical sublime। If I talk about egotistical sublime, a phrase, ये भी एक तरह का phrase है coined by John Keats। John Keats ने coin किया है to describe his वर्जन ऑफ वर्ड्सवर्थ डिस्टिंक्टिव जीनियस। और एक किसके लिए उन्होंने क्या, वर्ड्सवर्थ डिस्टिंक्टिव जीनियस। और निगेटिव कैपेबिलिटी में उन्होंने किसको सेंटर में रख के बात कही है? जस्ट आई वांट टू नो कि इन निगेटिव कैपेबिलिटी whom he put in center। Sir, character or object, any object, or Yeah, sir, character object, but he gave the example of Shakespeare. William Shakespeare। Yeah, Shakespeare, yes, William Shakespeare, he said like, that he found negative capability in Shakespeare। This is why he used the word prime example, Shakespeare as the prime example of negative
capability, Capability. because yeah, Shakespeare just killed his what? His ego, and Shakespeare killed his negation, and he just, you can say, lived that life or that character which he created. This is why we Yes. found the, yeah, he has sympathy, sorry, empathy and understanding of his character. In the same way, when he talk about egotistical sublime, he defined egotistical sublime in the lights of William Wordsworth and says that, Shakespeare. yeah, William Wordsworth का कि distinctive genius जो है, he says that कि Wordsworth possesses, what does he possess? He possesses imaginative self observation. Wordsworth में क्या है? Imaginative self obsession, imaginative self obsession, a devouring egotism in कॉन्ट्रेडिक्शन टू शेक्सपियर। अब देखिए कि शेक्सपियर में ईगोटिस्टिकल सबलाइम नहीं रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि वर्ड्सवर्थ में क्या था? ईगोटिस्टिकल सबलाइम रहा है। मतलब वर्ड्सवर्थ में एक ईगोटिस्ट, ही वाज एन ईगोटिस्ट पोएट, ईगोटिस्टिकल पोएट। एंड यू विल कम टू नो कि ये फ्रेज उन्होंने यूज किया और क्या कहा कि उनके अंदर इमेजिनेटिव सेल्फ obsession था, a devouring egotism in contradiction to Shakespeare, who was the least of an egoist। और शेक्सपियर में इगोइस्ट नहीं थे, शेक्सपियर इगोइस्ट नहीं थे, that it was possible to be, remember, a devouring egotism in contradiction to Shakespeare। शेक्सपियर में क्या था? इगोइस्ट नहीं थे। तो अगर मैं आपसे बात करूं सिंपल से शब्द में कि हु इज एन इगोइस्ट, अगर हम किसी को ये कहते हैं कि इनमें ईगो बहुत ज्यादा है, तो वह ईगो का क्या मतलब होगा? ईगो का मतलब घमंड से निकलता है। आदमी सिंपल भाषा में कहता है कि आप अपने ईगो को किल कर दीजिए। अगर आप अपने में ईगो रखेंगे तो वह ईगो आपको क्या करेगा? अच्छा नहीं है, या ईगो अच्छी चीज नहीं माना जाता है। लेकिन दो शब्द होते हैं, एक होता है कि प्राउड, और एक होता है कि किसे यू कैन से कि एक प्राउड के सेंस में कह सकते हैं आई फील प्राउड ऑफ यू, या जो है इस तरह की चीजें। तो वो प्राउड तो ठीक है, वो एक नेचर। लेकिन जब आप ईगो की बात करते हैं तो ईगो जो है विलियम जानकीर्स की नजर में ये एक अच्छी चीज नहीं रही है, क्योंकि जो ईगो है वह आपके अंदर क्रिएटिविटी को जन्म नहीं देता है, और आप क्या करते हैं? आप अपने आप को डिटैच कर लेते हैं। तो ये किसका ओपिनियन है? इट्स द ओपिनियन ऑफ जॉन कीट्स। और जॉन कीट्स कहते हैं कि जो ईगोटिस्टिकल सबलाइम है, इट इज फाउंड वेयर ही सा दिस पॉइंट इन वर्ड्सवर्थ। और कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ के अंदर जो वर्ड्सवर्थ पॉजेसेस इमेजिनेटिव सेल्फ ऑब्सेशन, उनके अंदर सेल्फ ऑब्सेशन था, उनको अपने ऊपर बहुत ऑब्सेसिव थे वो जो है। और उनकी उनमें इमेजिनेटिव सेल्फ ऑब्सेशन था, वो कल्पना तो करते थे, लेकिन उनकी जो कल्पना थी उनमें जो है बहुत ज्यादा आई भरा हुआ था। सेल्फ का मतलब क्या है? कि आई भरा हुआ था, वो उससे बाहर नहीं निकल पाते थे। आई जब भरा होगा तो आप दूसरे को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। इसके पीछे रीजन ये है कि अगर आपको याद होगा कि एक दीवार खड़ी थी, वह दीवार क्या थी? ओल्ड जनरेशन ऑफ ओल्ड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स एंड यंग जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स। ये जो दो जनरेशन थी, इनमें जो है ईगो का भी लड़ाई झगड़ा चल रहा था। यंग जनरेशन को ये लगता था कि वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और रॉबर्ट सदे ये ऐसे पोएट है जिनमें इगोटिस्टिकल सबलाइम है, और दे आर नॉट रेडी टू वेलकम द यंग जनरेशन। यंग जनरेशन के प्रति इम्पैथी नहीं है। तो ये प्रैक्टिकली देखने को मिला था, लेकिन जो है जॉन कीट्स ने इस चीज को अप्लाई किया है। किसमें अप्लाई किया है? वर्ड्सवर्थ की क्रिएटिविटी में। और और जॉन कीट्स की नजर में वर्ड्सवर्थ से ग्रेट कौन रहे हैं? वर्ड्सवर्थ से ग्रेट शेक्सपियर रहे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वर्ड्सवर्थ से ग्रेट कौन रहा? शेक्सपियर रहे। So you've come to know about this thing, yeah, you see this thing, and here you will come to know कि what does he want to say, कि a phrase coined by John Keats to describe his version of Wordsworth distinctive genius। और वह क्या था? Wordsworth possesses imaginative self obsession, a devouring egotism
इन कॉन्ट्रडिक्शन टू शेक्सपियर हु वॉज द लीस्ट ऑफ एन इगोइस्ट। शेक्सपियर क्या थे? लीस्ट इगोइस्ट थे, लेकिन जो है आपके वर्ड्सवर्थ जो है क्या रहे? या इगोइस्ट रहे, इसलिए उन्होंने शेक्सपियर को किससे बड़ा माना? वर्ड्सवर्थ से बड़ा माना। और एक कहते हैं कि जो क्रिएटिविटी शेक्सपियर में है वो क्रिएटिविटी वर्ड्सवर्थ में नहीं है। क्यों? चूंकि वर्ड्सवर्थ वाज एन इगोइस्ट पोएट, या उनमें जो सबलाइम थॉट था, सबलाइम का मतलब क्या? जो नोबल थॉट है, वो नोबल थॉट में ईगो नजर आता है। उस वर्ड्सवर्थ में आई बहुत ज्यादा है। जब आई होगा तो वो यू को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिए हुए है। इस तरह से अगर आप देखेंगे ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे नजर आता है? जो ओल्ड जनरेशन और जो न्यू जनरेशन का लड़ाई झगड़ा रहा है, वहां भी ये चीज नजर आती है। डिड यू गेट इट? Yes, sir. या now we have to come towards the third point, willing suspension of disbelief. When I talk about willing suspension of disbelief, you will come to know the phrase was used by H.T. Coleridge. ये जो फ्रेज यूज किया गया किसके द्वारा? एच टी कॉलरिज के द्वारा इन 1817 इन हिज बुक बायोग्राफिया लिटरेरिया। कौन सी किताब में? बायोग्राफिया लिटरेरिया में। ही सजेस्टेड दैट इफ अ राइटर कुड infuse a human interest and a semblance of truth into a fantastic tale. It's a very significant point. ट्रूथ को किसमें जो है मिलाना है? फैंटास्टिक टेल में मिलाना है। आप मुझे बस पहले इन्हीं दोनों शब्दों का अंतर बता दीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड फैंटास्टिक टेल एंड सेम्बलेंस? यही तीन शब्द ही आपको क्या करेगा? विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ के लिए हो जाएगा। व्हेन आई टॉक अबाउट ट्रूथ, तो ट्रूथ का मतलब क्या हो गया? ट्रूथ का मतलब जो है आप कह सकते हैं कि एक होती है हकीकत मतलब वास्तविकता, और एक होता है सच या सत्य। हमेशा ये शब्द यूज कहा जाता है, हमें सत्य बोलना चाहिए। जब आप सत्य की बात करते हैं तो इसका मतलब आप ट्रूथ की बात कर रहे हैं। जब आप ये कहते हैं कि हकीकत ये है, तो हकीकत का मतलब ये इस पर डिपेंड करता है जो हमारी आंखें देखती हैं, जो हमारी आंखों से दिखाई पड़ रहा है, जो हमारी आंखें एक एविडेंस बनती है, वह हकीकत है। तो उन्होंने हकीकत की बात नहीं कही, उन्होंने ट्रुथ की बात कही है। इसका मतलब जो ट्रुथ है वह बड़ी चीज है। जितने भी धार्मिक ग्रंथ है उसमें इस चीज को कहा गया, आदमी को सत्य बोलना चाहिए, सत्य वचन की बात की जाती है। ट्रूथ ट्रूथ की बात की गई है, या ट्रू स्टेटमेंट की बात की गई है। ट्रू और जो कॉन्सेप्ट आता है, ट्रू और फॉल्स का कॉन्सेप्ट आता है, उसमें रियलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ पे रियलिटी नहीं, बल्कि उन्होंने कहा जो ट्रूथ है, जो सत्य है, अगर कोई सत्य चीज जो है किसमें कन्वर्ट कर दी जाए? फैंटास्टिक में कन्वर्ट कर दी जाए। फैंटास्टिक टेल कौन सा टेल होता है? जो इमेजिनेटिव होता है। इसका मतलब कि ट्रूथ का मतलब क्या है? ट्रूथ का मतलब रियलिटी से है, लेकिन वो जो रियलिटी है एक ऐसी रियलिटी विच इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेड बाय एवरीवन बियॉन्ड टाइम एंड प्लेस। सच वही होता है जिसको पूरी दुनिया स्वीकार करती है, बगैर जो जो समय और स्थान से परे है। अगर मैं ये कहता हूं कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो यह ट्रूथ है, यह ट्रूथ है। मैन इज बॉर्न बट टू डाई, आदमी ने जन्म लिया मरने के लिए, इस स्टेटमेंट में ट्रूथ नजर आ रहा है। और यह क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि ये स्टेटमेंट पूरी दुनिया में हर आदमी स्वीकार करता है, कंफर्म हो रहा है। लेकिन एक समय अगर आपको याद होगा, रियलिटी क्या मानी जाती थी? एक समय रियलिटी ये मानी जाती थी कि सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है। लेकिन जब टालेमी या कॉपरनिकस आए तो वो जो है रियलिटी बदल गई, और ये कहा गया नहीं, द सन इज इन सेंटर एंड द अर्थ मूव्स अराउंड इट। इसका मतलब कि जो आज रियलिटी है जिसे हम वास्तविकता समझ रहे हैं, यह कल चैलेंजेबल हो सकता है, लेकिन जो ट्रूथ होता है वह चैलेंजेबल नहीं होता। ट्रूथ अनचैलेंजेबल होता है, सच सत्य अनचैलेंजेबल होता है, लेकिन रियलिटी को चैलेंज किया जा सकता है। मेरी ये बात समझ में आ रही? दोनों पॉइंट?
May I know? Then after it I will be able to explain. क्या ट्रूथ और रियलिटी में अंतर आ गया समझ में कि जो ट्रूथ है वो अनचैलेंजेबल है. इट इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेड बाय एवरीवन. इट्स बियॉन्ड टाइम एंड प्लेस. अगर इस ट्रुथ को किस में मिला दिया जाए, फैंटास्टिक में मिला दिया जाए, तो फैंटास्टिक क्या है? इमेजिनेटिव. तो अगर जो सच है उस सच को जब इमेजिनेटिव स्टोरीज में या टेल में मिलाया जाता है तो रीडर जो है क्या होता है? द रीडर वुड सस्पेंड जजमेंट. तो रीडर क्या करेगा? उस जजमेंट को सस्पेंड करेगा. वह क्या करेगा? वह जो है फैंटास्टिक को भी फैंटास्टिक में भी विश्वास करने लगेगा. और वह ट्रुथ की परिधि से बाहर निकल करके जो फैंटास्टिक वर्ल्ड है उस फैंटास्टिक वर्ल्ड में वह यकीन करना शुरू कर देगा. तो दिस फैंटास्टिक वर्ल्ड का मतलब क्या हुआ कि द राइटर विल स्टार्ट टू बिलीव इन द फैंटास्टिक वर्ल्ड. और ये जो फैंटास्टिक वर्ल्ड में विश्वास है या क्यों बन रहा है? क्योंकि जो है रीडर ने या राइटर ने एक ऐसा क्रिएटिविटी को जन्म दिया इन विच यू फाइंड दैट की semblance ऑफ ट्रूथ इनटू अ फैंटास्टिक टेल. द रीडर वुड सस्पेंड जजमेंट कंसर्निंग द implausibility ऑफ narrative. Coleridge sought to revive. Coleridge ने ऐसा क्यों किया? Because he sought to revive द फैंटास्टिक एलिमेंट्स इन पोइट्री. उन्होंने जो है क्या किया कि पोइट्री में फैंटास्टिक एलिमेंट को जन्म देना चाहा. इसीलिए उन्होंने कहा कि आई हैव टू क्रिएट सच अ वर्ल्ड इन विच, जिसमें एक कॉन्सेप्शन होता है कि कॉन्सेप्ट है कि विलिंग सस्पेंशन. विल का मतलब होता है इच्छा. अगर हमारी जो इच्छा होती है कि सत्य में विश्वास करने की, उसको सस्पेंड करना चाहिए कुछ समय के लिए. और हमें कहाँ पे चला जाना चाहिए? डिसबिलीफिंग वर्ल्ड, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ. इट मीन्स दैट कि वी बिलीव दैट की फैंटास्टिक वर्ल्ड, वी बिलीव दैट का इमेजिनेटिव वर्ल्ड, it is a thing in which we can't believe. But he says that no, for some time, for some days we can just suspend and we can still believe. Yeah, we can believe into unbelievable things. Yeah, we can believe even in the fantastic things. So this concept you find there. So that is the phrase ki willing suspension of disbelief. Semblance of truth into what? Semblance of truth into a fantastic tale. That is the important word. Semblance of truth into a fantastic tale. Did you come to know it? Yeah. Should I explain it again? Rama, Amit Bhai, and any other? Yeah. May सर I know, एक are बार you और getting? सर एक बार और तो एक्सप्लेन कर दीजिए. आप देखिए, इन अ वेरी सिंपल वर्ड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो आपका फ्रेज है वो फ्रेज कौन सा है? विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ. इफ आई से कि विलिंग का मतलब क्या होता है कि इफ एनीवन आस्क यू व्हाट्स योर विल, व्हाट्स योर डिजायर, जो आपकी डिजायर है, जो आपका विलिंग है, जो आपका अपना इच्छा है, वह क्या है? उसको सस्पेंशन कर दिया जाए. किस चीज का सस्पेंशन कर दिया जाए? कि कोई भी चीज डिसबिलीव है. नो, नॉट एट ऑल. आपके मन से एक ख्याल निकाल दिया जाए कि कोई भी चीज डिसबिलीवेबल है. डिसबिलीवेबल कौन सी चीज होती? वह जिस पर विश्वास ना किया जा सके. क्या आप इमेजिनेटिव वर्ल्ड में विश्वास कर सकते हैं? नो. आप कहेंगे इमेजिनेशन इज इमेजिनेशन, आई कांट बिलीव इन इमेजिनेटिव वर्ल्ड. लेकिन कॉलरिज कहते नहीं, हम जब चीजों को क्रिएट करते हैं तो हम उसको ऐसा क्रिएट कर सकते हैं कि जो डिसबिलीविंग चीज है उस डिसबिलीविंग चीज में हम क्या कर सकते हैं? वी कैन बिलीव. लेकिन उसको विश्वास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उस थियरी को जन्म देना पड़ेगा. दैट इज नोन एज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ. फॉर एग्जाम्पल के लिए उन्होंने कहा ये बात किसमें? बायोग्राफिया लिटरेरिया में. और वो कहते हैं इफ अ राइटर कुड इन्फ्यूज, अगर एक राइटर इन्फ्यूज कर सके, मिला सके. क्या मिला सके?
ह्यूमन इंटरेस्ट, आदमी की का जो इंटरेस्ट है किसमें, एंड द सिम्बलेंस ऑफ ट्रूथ इनटू फैंटास्टिक टेल में। अब मैं आपको एक मात्र एक क्वेश्चन आपसे जानना चाहता हूँ, हैव यू सीन मूवी क्रिश थ्री? क्रिश थ्री जो मूवी है, उस मूवी में ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि जो हीरो ऋतिक रोशन है, ऋतिक रोशन जस्ट या उनके फादर जो है, दे टॉक विद एलियन एंड दे आर trying to understand the language of the alien, anyhow they come to know it। आप मुझे ये बताइए, आज के समय में ये विश्वास किया जाता है और ये लगभग लगभग ट्रूथ हो चुका है कि एलियन है, ठीक है, एलियन है। उनका नेचर क्या है, उनकी शक्ल क्या है, उनकी सूरत क्या है, वी डोंट नो। एक इमेज हमने बना दी है, गढ़ दी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो एलियन है या जो हमने गढ़ा है या जो हम जानने की कोशिश करते हैं, उस एलियन को हमने गढ़ दिया, लेकिन उनसे बात करना यह एक फैंटास्टिक टेल है। क्या उनसे बात संभव है? नो, नॉट एट ऑल। आप कहेंगे सर नहीं संभव है, फिर भी लोग कहते हैं उनसे बात करना संभव नहीं है, यह फैंटास्टिक टेल है। लेकिन इस फैंटास्टिक टेल में को जो है क्या किया गया, एक रियलिटी की शक्ल दी गई और डिसबिलीफ के कॉन्सेप्ट को खत्म किया गया और ये कहा गया कि नो, वी कैन बिलीव इन देम, वी कैन टॉक विद देम। दिस हैज बीन प्रेजेंटेड वेयर, दिस हैज बीन प्रेजेंटेड इन द मूवी क्रिश थ्री में। एंड द सेम थिंग यू फाइंड दैट कि रोबोट जो मूवी आई थी, किसका रोब आया हुआ था, दैट वाज द मूवी ऑफ हु वाज द हीरो, रजनीकांत। And you will come to know कि we know it very well कि robot is a machine, but that machine loves ऐश्वर्या राय। तो एक रोबोट ऐश्वर्या राय को लव करता है। अगर जिस दिन मशीन ऐश्वर्या राय को लव करने लगेगा तो यह फैंटास्टिक टेल है, कंफर्म हो रहा है। लेकिन रोबोट एक रियलिटी है, रोबोट एक ट्रूथ है। लेकिन ये फैंटास्टिक टेल है। वो कौन सा फैंटास्टिक टेल है कि रोबोट कांट लव, दैट इज अ मशीन, शी कांट लव या इट कांट लव टू अ वुमन। लेकिन उसमें उसको दिखाया गया और वी स्टार्ट टू बिलीव। सो ये जो प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस इज व्हाट, दिस प्रोसेस इज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। एंड इट बिकेम पॉसिबल, हाउ इट बिकेम पॉसिबल, बिकॉज ह्यूमन इंटरेस्ट को इन्फ्यूज किया गया और क्या, असेंबलेंस ऑफ ट्रूथ, और साथ ही साथ उसका फैंटास्टिक टेल को, जो एक काल्पनिक कहानी थी, उस काल्पनिक कहानी पर जो है हकीकत या सत्य की चादर ओढ़ा दी जाती, चढ़ा दी जाती है और हमारी आंखों में उस सत्य के रूप में नजर आता है और वी स्टार्ट टू बिलीव। आई थिंक कि ये दोनों एग्जांपल के बाद आपको और समझ में आ गया होगा। यस सर, आ गया सर। अमित भाई, ओम प्रकाश भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ओके सर। ओके, बिकॉज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, बाद में ये चीज किसमें तब्दील हो जाती है, मैजिक रियलिज्म में, जो आपका मॉडर्न एज का फिक्शन है। शुरुआत तो यही से होगा, बट इट विल टर्न इनटू मैजिक रियलिज्म। और विलिंग सस्पेंशन एक ऐसा शब्द है जो बहुत सिंपल में कहूं, एक ऐसी कल्पना की दुनिया जिसमें इंसान को यकीन ना हो, लेकिन उस कल्पना की दुनिया को ऐसा प्रेजेंट किया जाए, हकीकत की चादर चढ़ा करके, कि लोग उसमें विश्वास करने लगे, लोग उसमें विश्वास करने लगे। दैट इज द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। कंफर्म? दैट इज द पॉइंट। Now we are going to take one more touchstone method। You will come to know कि जो ये touchstone method है किसका कॉन्सेप्ट है, इट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड। और मैथ्यू अर्नोल्ड का ये जो कॉन्सेप्ट है, मेथड इज अ कंपैरेटिव मेथड ऑफ क्रिटिसिज्म। अकॉर्डिंग टू द मेथड, द स्पेसिमेंस ऑफ द वेरी हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ पोइट्री, उन्होंने ये मेथड एडॉप्ट किया है कि जो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ पोइट्री, शब्द पे ध्यान रखिएगा, highest quality of poetry are compared to the specimen of work of poetry under study and conclusion। जो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ पोइट्री है उसका तुलना क्या किया जा सकता है किसी स्पीसीमेन से। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, अगर जो है इफ यू गो विद जॉन मिल्टन पैराडाइज लास्ट एंड पैराडाइज रिगेन,
तो पैराडाइज लास्ट और पैराडाइज रिगेन किसका एग्जांपल है? हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ पोइट्री। लेकिन वो 12 किताबों में है तो हम उसको पूरा नहीं पढ़ सकते हैं। उसकी तुलना हम क्या करेंगे? किसी स्पीसीमेन वर्क से करेंगे, और उसकी तुलना स्पीसीमेन वर्क का करने के लिए उसी के समकक्ष, जैसे होमर का इलियड एंड ओडिसी है, उससे किया जा सकता है। तो ये जानने के लिए कि वो किस तरह का पोयम है या उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, उसको समझने के लिए हम इसको क्या करेंगे? तुलना करेंगे। आप पोइट्री अंडर स्टडी एंड कंक्लूजन आर ड्रॉन इन फेवर और अगेंस्ट, और उसमें जो कंक्लूजन निकालेंगे या तो फेवर में होगा या अगेंस्ट में होगा, या तो अच्छा पाएंगे या बुरा पाएंगे दवा। अ टच स्टोन कैन बी अ शॉर्ट पैसेज, करें कि किसी भी वर्क के छोटे से पैसेज को ले लेना है from recognized master's work used in assaying the relative merit of poetry and literature, especially poetry and literature में this sense was coined by Matthew Arnold in his essay The Study of Poetry में उन्होंने इसको coin किया था, where he gives Hamlet's dying words to Horatio, जहाँ पे उन्होंने हैमलेट के मरते हुए शब्दों की तुलना होरेसियो के एक स्पीच से किया हुआ था। नाउ अब आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि टच स्टोन मेथड, टच स्टोन मेथड का मतलब कि दिस मेथड इज यूज्ड फॉर व्हाट? दिस मेथड इज यूज्ड बाय द पोएट एंड इन दिस मेथड यू विल कम टू नो। उन्होंने कहा जैसे एक एक पत्थर होता है, और उस पत्थर पे अगर आप कोई प्रीसस स्टोन हो, और उस प्रीसस स्टोन पे इफ यू जस्ट ड्रा अ स्ट्रीक, STREAK, एक धारी अगर आप खींच दे तो उस केवल एक लाइन खींचने से ही उस पत्थर की क्वालिटी पता चलती है, उसका इम्पोर्टेंस पता चलता है। उसी पैटर्न पर वो एक कहते हैं कि अगर हम उस पत्थर की तरह उस पूरे पत्थर को हमने हमने उस पर स्ट्रीक को ड्रा नहीं किया, जस्ट आई ड्रा ओनली वन स्ट्रीक एंड द सेम थिंग if you have any great work means highest quality of poetry, we don't need to read the whole poem, we can take only some passages or lines and compare those passages or lines with other great works, and then we will be able to come or to know about its attributes, what type of work is it and what the attributes it has. So ये चीजें द स्टडी ऑफ पोइट्री में उन्होंने उसको कहा। सो वी कैन जस्ट सी या वी कैन जस्ट फाइंड। तो कुल मिलाकर के ये है कि कोई भी जो क्लासिक पीस है, जो मास्टर पीस है, जो बड़ी है, पूरा हम एक साथ पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन उसके कुछ हिस्से को लेकर उसी के समकक्ष दूसरे वर्क से तुलना करके हम उसको कर सकते हैं, समझ सकते हैं वो किस तरह का काम है, क्या कितना ग्रेट है। इस चीज को उन्होंने क्या कहा? टच स्टोन मेथड। जैसे पत्थर को छूने से पता चलता है कि वो किस तरह का पत्थर है, उस कितना कीमती है। उन्होंने कहा इसके लिए जरूरी नहीं कि हम पूरे पत्थर को तोड़े, बल्कि उस पर अगर एक लाइन खींचेंगे तो उसकी धारी से पता चलेगा कि हाउ मच शाइनिंग और ब्राइटनेस इट हैज एंड हाउ मच प्रीशियस इट इज। In the same way, if there is any great work, if there is any classic piece of literature, we don't need to read the whole book of poem. We can take only some passages or some lines and compare it with the uh, उसी के इक्वल जो वर्क होता है उससे हम इसका तुलना कर सकते हैं। दैट इज द टच स्टोन मेथड गिवन बाय हूम? गिवन बाय अर्नोल्ड। किसमें दिया गया? द स्टडी ऑफ पोइट्री में। डिड यू कम टू नो इट? Yes, sir. Yeah, okay. Now another one is the Philistinism. द ब्रिटिश पोएट एंड कल्चरल क्रिटिक मैथ्यू अर्नोल्ड, जो ब्रिटिश पोएट और जो कल्चरल क्रिटिक मैथ्यू अर्नोल्ड है, एडेप्टेड द जर्मन वर्ड फिलिस्टर। इन्होंने ये भी वर्ड फिलिस्तीनिज्म किसको द्वारा यूज किया गया है? मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा। और इन्होंने ये कहाँ से लिया? जर्मन वर्ड फिलिस्टर से लिया है। और ये कहाँ के लिए? टू इंग्लिश एज द वर्ड फिलिस्तीन टू डिनोट एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म। ये जो वर्ड फिलिस्तीन है यह किसके लिए आया हुआ? एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म को शो करता है। किसको शो करता है? एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म। अ फिलिस्तीन पर्सन इज ऑफ अ स्मगली नैरो माइंड। कह रहे कि फिलिस्तीन पर्सन वह होता है जो नैरो माइंड होता है।
एंड ऑफ कन्वेंशनल मोरालिटी, जो पारंपरिक मोरालिटी में विश्वास करता, whose materialistic views and tastes indicate a lack of an indifference to cultural, और जिसका कल्चर में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और एस्थेटिक वैल्यूज में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो फिलिस्तीनिज्म जो शब्द है दिया गया किसके द्वारा दिया गया? इट हैज बीन गिवन बाय मैथ्यू और गया है जर्मन शब्द फिलिस्टर से लिया गया है, और यह इंग्लिश पीपल को शो करता है, उन पीपल को जो नैरो माइंडेड है, जो कन्वेंशनल मोरालिटी के प्रतीक है, जो मटेरियलिस्टिक व्यूज रखते हैं और जिनका इंटरेस्ट कल्चर में और एस्थेटिक वैल्यूज में ना के बराबर। आई थिंक यू गॉट इट। या शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन? एनी? Sir, smugly narrow mind. Yeah, smuggling narrow mind, a person who has narrow thought, a person who does not have a wide thought, such a type of person who does not have any interest in culture and who is passing a materialistic life. Life. Yeah, Sir, Philistine to denote anti-intellectualism. anti-intellectualism, because any person who has narrow minded, they are anti-intellectual. Yes, sir. Okay, sir. Yeah. Okay, okay. So these are, you have go only with words. एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म पहला क्वालिटी होता है, नैरो माइंडेड दूसरा होता है, कन्वेंशनल मोरालिटी के प्रतीक वो लोग होते हैं, और वो लोग कैसी जिंदगी जीते, मटेरियलिस्टिक व्यूज उनका होता है, और उनका जो टेस्ट होता है या इंडिकेट करता है दे डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन कल्चर एंड एस्थेटिक वैल्यूज, उनका कल्चर और एस्थेटिक वैल्यूज में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। ये उन्होंने किसके लिए कहा था? विक्टोरियन एज में जब मिडिल क्लास के लोग उभर रहे थे और मिडिल क्लास के लोग मटेरियलिस्टिक लाइफ व्यतीत कर रहे थे, क्योंकि उनकी जितनी भी पोयम है उसमें डिग्रेडेशन ऑफ द मॉरल वैल्यूज दिखाएगा, और उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि ये चीजें बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, तो उन्होंने ये बात कही। आई थिंक यू गॉट इट। So just concluding here, if you have any problem, you can tell me. And today we have taken 4 words. If I discuss any other words on other platform, then I will share it video. Okay.